Hello children, welcome to class 3 computers. Children, this is your computer book IT Planet, my bits and bytes computer series 3. Children, in our previous video we were doing chapter 3, that is computer hardware. So children, today we will be reading the remaining part of the chapter. We have come to the end of the chapter. We have one or two topics remaining. Today we will read those, and before reading that, let us revise what we have done till now. So children, let us start with chapter 3. So children, in our previous video we were doing system unit. So children, what is a system unit? Children, as we know, here in system unit we had studied about the CPU. So children, what is CPU? CPU is a you can call it as computer case, or you can call it as system unit. So children, CPU is a plastic or metal case that stands near the monitor. Children, whenever you look at the computer, children, you must have seen computer that there are some important parts along with the computer, and these complete all these parts together are called computer system. Up children, in this system you have a box like structure which stands just beside the monitor. So what is this children box like structure? It is nothing. It may be made up of plastic or metal. Sometimes it is made up of plastic and sometimes it is made up of metal. So this metal or plastic case that stands near the monitor is called सिस्टम यूनिट. इसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, हम इसे CPU भी कह सकते हैं, और चिल्ड्रन इसे हम कंप्यूटर केस भी कह सकते हैं. सो चिल्ड्रन, एज आई टोल्ड यू, द कंप्लीट ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय अ ब्रेन. आवर ब्रेन इज द सेंट्रल यूनिट ऑफ आवर body, children, as it controls all the different parts of the body. Similarly children, in computer also, CPU is the brain of a computer. We all know, and we all know it very well, that CPU acts like a brain which controls all other part of the computer, and all the work or all the processing is done by the CPU only. So here also children, some system units are placed under the मॉनिटर. तो मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, एक तो हमें बाहर एक्सटर्नल बॉडी दिखाई देती है और उसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं. उसके अलावा हमारे पास जो मॉनिटर होता है उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, और सिमिलरली CPU के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं. सो हियर चिल्ड्रन, सम सिस्टम यूनिट्स आर प्लेस्ड अंडर द मॉनिटर. It is the most important part of the computer system, and a system unit is called as the computer case. Is it the CPU or system unit? So children, yes, it is a system unit, or you can say a computer case. CPU is a very important component of a computer which resides in the system unit. Every computer has a system unit. So children, system unit is nothing but it is a computer, and which is one of the important component, जो कि एक important component या part of computer है, and which resides in the system unit. और हर computer के पास उसका एक system होता है, otherwise computer won't be able to perform any work. तो जैसा कि हम जानते हैं, जो CPU होता है उसका full form ही central processing unit होता है. तो children, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसका मेन पर्पस इज़ टू परफॉर्म एनी वर्क, और पूरे कंप्यूटर के पार्ट्स जो होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम में बनाते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है. और जो भी बाकी पार्ट्स को तो या तो हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं या फिर आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर में काम होता है या जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं, दैट इज़ डन बाय द सिस्टम यूनिट. सो हियर चिल्ड्रन, सिस्टम यूनिट इज़ नथिंग but a computer case or CPU. So children, this was what we had studied in our previous video. Now let us come with features of system unit. So children, what are the features of system unit? Let us see. So this also we had discussed, children. Here we have two parts of two faces of a CPU. आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर जो बनी हुई है, ये दो, एक आगे का पार्ट है और एक पीछे का पार्ट है. मतलब
CPU जो होता है उसके जो आगे फ्रंट पार्ट कैसा दिखता है और बैक पार्ट कैसा दिखता है। सो चिल्ड्रन, अगर आपने CPU देखा होगा कभी तो आपने देखा होगा कि जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें एक DVD ड्राइव या CD ड्राइव होता है, वी हैव ऑन ऑफ बटन होता है। देन चिल्ड्रन वी हैव यहाँ पे हमारे पास एक ऑन ऑफ बटन होता है, यस। और उसके अलावा चिल्ड्रन हमारे पास जो दूसरा पार्ट है कंप्यूटर का जो पीछे की तरफ से हम देखते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, हमने पिछली बार एक वर्ड पढ़ा था पोर्ट। पोर्ट इज़ द प्लेस वेयर वी पुट द वायर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो CPU होता है वो पूरे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। इसलिए क्या होता है कि so children, as you can see here we have two pictures. First picture is of the front part of the CPU and second picture is of the back side of the CPU. You can say front view and back view. इसका मतलब ये है कि फ्रंट से जैसा दिखता है और पीछे से जैसा, बैक से जैसा दिखता है। तो ये फ्रंट और बैक व्यूज़ दिए हैं। सो चिल्ड्रन, एज आई टोल्ड यू, इन द फ्रंट व्यू यू हैव CD और DVD ड्राइव। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस वन इज़ DVD ड्राइव। देन वी हैव ऑन ऑफ स्विच हमारे पास होता है, यू कैन सी हियर। आप थोड़ा इसे बड़ा करेंगे तो आपको क्लियरली पिक्चर दिखाई देगी। सो चिल्ड्रन, you can see here this one is switch, on off switch। और उसके बाद ये आपका DVD ड्राइव है। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है चिल्ड्रन, देयर इज़ अ लाइट विच कीप्स ऑन मतलब जो ग्लो करता रहता है व्हेन द सिस्टम इज़ ऑन। जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं वैसे ही जो CPU के बटन को हम ऑन ऑफ बटन को ऑन करते हैं तो एक्टिविटी लाइट, जिसे हम एक्टिविटी लाइट कहते हैं, तो ये लाइट जल जाती है। सो दिस इज़ फ्रंट व्यू ऑफ द CPU। अब अगर आप बैक व्यू देखोगे तो चिल्ड्रन, एज आई हैव टोल्ड यू कि जो बैक व्यू होता है कंप्यूटर का उसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। द कंप्यूटर केस हैज़ मैनी पोर्ट्स। वॉट आर दीज पोर्ट्स चिल्ड्रन? दीज पोर्ट्स आर वेयर यू कैन प्लग इन अदर computer components like mouse, keyboard, monitor, etc. So children, here you can see what is a system unit. Features of system unit का मतलब होता है the facilities or the all the properties which it provides to us। इसके जो भी properties को या इसके जो भी features को हम use कर पाते हैं उन्हें हम यहाँ पे फीचर्स कहते हैं। जैसे कि जो भी इसके यूजेस हैं और जो भी बेनिफिट्स हैं जिसके वजह से हम इस कंप्यूटर को यूज़ करते हैं उसको हम फीचर्स कहते हैं। तो चिल्ड्रन, एज यू नो कि जो CPU होता है या फिर हम इसे सिस्टम यूनिट या कंप्यूटर केस कहते हैं, वो हर कंप्यूटर के केस में, इन एवरी कंप्यूटर हैज़ अ सिस्टम यूनिट और कंप्यूटर केस। सो एवरी कंप्यूटर हैज़ अ सिस्टम यूनिट और कंप्यूटर केस। Here you can see the picture of computer case children। Or children, you also know that the system unit protects the internal electronic components from the damage। आपको सभी को मैंने आपको बताया था कि बाहर के जो फिजिकल पार्ट होते हैं हम उनको छू करके फील करके देख सकते हैं, बट देयर आर सम मोर components present inside the case और inside the monitor। इन सब के अंदर कुछ और components होते हैं जिनको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि फ्रंट पार्ट जो कंप्यूटर का है, फ्रंट व्यू जो कंप्यूटर का, वहाँ पे DVD ड्राइव है, वहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच है और वहाँ पे एक एक्टिविटी लाइट है। एक्टिविटी लाइट का मतलब होता है चिल्ड्रन कि जब कंप्यूटर जल रहा होता, मतलब CPU ऑन होता है तो आपकी लाइट जल रही होती है। तो आपने जब भी देखा होगा हमें कंप्यूटर ऑन है कि नहीं, CPU ऑन है कि नहीं, सबका अपना अपना ऑन ऑफ बटन होता है। मॉनिटर में भी ऑन ऑफ बटन होता है, CPU में भी ऑन ऑफ बटन होता है। और आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे UPS है उसमें भी ऑन ऑफ बटन होता है। तो व्हेन वी स्विच ऑन द बटन्स चिल्ड्रन, वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, हम सारे बटन्स को एक एक करके ऑन ऑफ करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स विच कैन बी सीन इन फ्रंट व्यू ऑफ द CPU। देन चिल्ड्रंस, बैक व्यू में हमारे पास बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। what are these ports children? These are the plug points। जैसे आपके स्विच बोर्ड में प्लग पॉइंट होता है जहाँ पे आप प्लग लगाते हो, उसी तरह आप सभी को मालूम है
कि जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, चाहे वो मेन पार्ट्स यानी कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स हो या फिर सम एक्सटर्नल कंपोनेंट हो और जो हम बाहर से लगाते हैं, ऑल दीज कैन बी प्लग इनटू दिस बैक साइड ऑफ द CPU। हम उसको कहाँ प्लग इन करते हैं? ये जो बैक साइड CPU का एक लाइन से आप देख सकते हो प्लग्स है या पोर्ट्स है, वहीं पे हम इसको करते हैं। सो चिल्ड्रन, एज यू नो, सो चिल्ड्रन हियर जो ये पोर्ट्स होते हैं चिल्ड्रन, वहीं पे हम इन स्विचेस को प्लग इन करते हैं। जितने भी वायर्स हैं, चाहे वो माउस के हो, वेदर इट इज़ ऑफ कीबोर्ड, मॉनिटर, ऑल दीज आर कनेक्टेड टू द CPU with the help at the point called port। जो पोर्ट होते हैं वहीं पे हम इनको के प्लग्स को प्लग इन करते हैं। सो पोर्ट इज़ नथिंग बट दीज आर द पॉइंट्स वेयर वी कैन प्लग इन द वायर ऑफ माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या स्पीकर, प्रिंटर, जो भी हमें लगाना है, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, जो भी हमें लगाना है, इन सब के वायर को हम इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू प्लग इन करते हैं। सो चिल्ड्रन, दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ system unit. I hope you all have understood. So this we had studied in our previous video also. So children, components inside a system unit. What are the components inside the system unit children? अभी मैंने बताया कि system unit के अंदर कुछ components होते हैं which are very useful and which help us in the processing or doing any work which we do on the computer. So children, let us find out what are these components. तो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल पार्ट बाहर भी कंप्यूटर के होता है जो हमें दिखाई देता है, और कुछ फिजिकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के विच आर इनसाइड द कंप्यूटर, CPU और द मॉनिटर के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो इन सब को भी हम हार्डवेयर कहते हैं, क्योंकि हम उनको भी छू सकते हैं और उनको भी देख सकते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट आर दीज components. Now children, the components inside the unit, system unit includes motherboard, CPU, hard disk drive और CD-ROM drive. So children, as you know, पहला पार्ट तो मदर बोर्ड हो गया, और जो हमारा CPU है, so ये भी सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, तो दूसरा सिस्टम CPU हो गया, और फिर हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, जो कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, और CD-ROM और ड्राइव हो गया। तो हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में हमने स्टोरेज यूनिट के बारे में जब पढ़ा था तब भी पढ़ा था। तो इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड दिस केस। ये जो केस है जिसको हम CPU कहते हैं, लेकिन CPU भी इसके अंदर होता है। तो इस केस के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। तो ये जो आउटर एक्सटर्नल केस है, ये तो सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो लेट अस फाइंड आउट। सो चिल्ड्रन, यू कैन सी हियर मदरबोर्ड। व्हाट इज़ मदरबोर्ड चिल्ड्रन? आप ये देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है विच इज़ फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अंदर होता है। इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड। हम इसको सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं और मेन बोर्ड भी कहते हैं। इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ टाइनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। छोटे छोटे आप देख सकते हो यहाँ पे कंपोनेंट्स है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कहते हैं। तो मदरबोर्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड। इसको हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं और मेन बोर्ड भी कहते हैं। इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ अ मदरबोर्ड। यू कैन सी हाउ इट लुक्स। नाउ चिल्ड्रन, जो देन CPU, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, देखो दिस इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर केस और सिस्टम यूनिट। सो दिस इज़ चिल्ड्रन नथिंग बट द प्रोसेसिंग CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। CPU इज़ समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। हम इसे प्रोसेसर भी कहते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है जो इस केस के अंदर होता है। चिल्ड्रन, केस अगर हम कहें तो किसी भी चीज़ का कवर, केस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कवर। तो CPU भी इसके अंदर रहता है, इसलिए हम ओवरऑल को भी CPU कहते हैं। एक्चुअली ऊपर का जो डिब्बा है वो एक केस है, लेकिन ओवरऑल को भी हम, जब हमको अच्छे से नहीं पता होता है, शुरू में हम पढ़ रहे होते हैं,
तो हम इसको CPU ही कहते हैं, लेकिन CPU जो एक्चुअली होता है वो इस केस के अंदर या इस बॉक्स के अंदर होता है। तो CPU इज़ समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर भी हम इसको कहते हैं। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन। ये ब्रेन है कंप्यूटर का विच कंट्रोल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एज वेल एज ये जितना भी काम कंप्यूटर करता है सारे काम ये CPU ही करता है। उसके बाद चिल्ड्रन देयर इज़ अ बॉक्स कॉल्ड, इस बॉक्स को हम पहले भी देख चुके हैं। एक ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसको हम डिस्क ड्राइव कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डिस्क ड्राइव, दिस इज़ डिस्क ड्राइव। इसको हम डिस्क ड्राइव कहते हैं एंड दिस इज़ द ऑल्सो नोन एज मेन स्टोरेज यूनिट। इसमें जो भी चीज़ हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें जाके स्टोर हो जाती है। देन चिल्ड्रन, drives inside the system unit are used to store data. These drives are hard disk drives और CD-ROM drive। तो हार्ड डिस्क ड्राइव दो ड्राइव्स हो सकती है, एक CD-ROM हो सकता है, ड्राइव हो सकता है, या हार्ड डिस्क ड्राइव हो सकता है। सो चिल्ड्रन, these are present inside the केस और द सिस्टम यूनिट। ये पूरा जो सिस्टम यूनिट होता है जिसको हम केस भी कहते, कंप्यूटर केस भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें जिसको हम CPU के नाम से भी जानते हैं केस को, हम जब शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो पूरा बॉक्स होता है इट इज़ अ CPU, लेकिन एक्चुअली दिस इज़ अ काइंड ऑफ बॉक्स इन विच मदरबोर्ड इज़ प्रेजेंट, CPU इज़ प्रेजेंट एंड डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ प्रेजेंट। और CD-ROM ड्राइव मतलब कि CD-ROM को चलाने के लिए जो ड्राइव हम यूज़ करते हैं, जिसको हम DVD ड्राइव भी कहते हैं, वो भी इसके अंदर ही होता है। ये है आपका, आप देख सकते हो, दिस वन इज़ हार्ड डिस्क एंड दिस वन इज़ CD-ROM ड्राइव। तो ये दोनों रेक्टेंगुलर टाइप के बॉक्सेस होते हैं। जो हार्ड डिस्क होता है वो तो हम यूज़ करके उसमें चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होता है काम करने के बाद जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है उसको हम स्टोर करते हैं। लेकिन ये जो है ये ड्राइव है, इसमें हम CD भी लगा सकते हैं, DVD भी लगा सकते हैं इन ऑर्डर टू प्ले, ताकि कि CD या DVD प्ले कर सके। तो चिल्ड्रन, जब भी हमें CD या DVD को प्ले करना होता है तो हम इस ड्राइव पे लगा करके उसे प्ले करते हैं। सो चिल्ड्रन, this is system unit. Now, up children, this is all with the chapter. We have come to the end of chapter. So before concluding the chapter, children, once again revise whatever we have done in the chapter. So children, in this chapter till now we have studied about the hardware component of a computer. So children, what are the hardware components? Children, hardware component is nothing but all the physical part of the computer, all those parts which can be touched and felt, जिसे हम देख सकते हैं, छू करके महसूस कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, ऑल दीज पार्ट्स आर, सबसे पहले तो अगर हम इफ़ यू लुक एट द कंप्यूटर, आपको कुछ मेन पार्ट्स दिखाई देंगे और कुछ मे बी देयर और मे नॉट बी देयर, लेकिन जितनी भी चीज़ें हम कंप्यूटर के, जितने भी पार्ट्स हम कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हैं चिल्ड्रन, ऑल दीज पार्ट्स आर कॉल्ड, और वो हमें दिखाई देते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो अभी तक हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें, और स्टोरेज डिवाइसेस, क्योंकि स्टोरेज डिवाइसेस कुछ तो सिस्टम यूनिट में आ जाते हैं और कुछ को हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका CD-ROM हो गया, या फिर DVD-ROM हो गया, या फिर आपका पेन ड्राइव हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हार्डवेयर। सो इसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर भी कहते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं। आप देख सकते हो बच्चों कि जब हम CPU की तरफ देखते हैं या कंप्यूटर केस की तरफ देखते हैं तो हमें ना तो CPU दिखाई देता है, ना तो हमें डिस्क ड्राइव दिखाई देता है, ना ही हमें आपका हार्ड डिस्क दिखाई देता है, ना ही मदरबोर्ड दिखाई देता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो हार्डवेयर कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, बट दे ऑल आर प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर केस, या आप कह सकते हो सिस्टम यूनिट के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन पूरे बॉक्स को हम एक बार देख करके CPU कहते हैं, क्योंकि जितना भी, वाई हम उस पूरे केस को CPU इसलिए कहते हैं चिल्ड्रन, क्योंकि कंप्लीट प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर इज़ डन इनसाइड दिस CPU, इसीलिए इनसाइड दिस
केस, इसलिए हम उसको CPU भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली CPU इज़ प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर विच परफॉर्म्स ऑल द वर्क। सो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। तो अभी तक हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ा, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा, स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ा एंड द सिस्टम यूनिट। अब आई होप यू ऑल कैन लुक एट दीज पिक्चर्स एंड अंडरस्टैंड। सो चिल्ड्रन, एक बार फिर हम सिस्टम यूनिट रिवाइज करते हैं। सिस्टम यूनिट का मतलब होता है द केस, जिसको हम वो केस, मेटालिक केस और चिल्ड्रन प्लास्टिक केस विच वी कैन सी जस्ट बिसाइड द कंप्यूटर, जिसको अभी तक हम कहते थे CPU। तो इसे हम CPU कहते थे, लेकिन जो CPU होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। दैट इज़ वाई वी say here, is it the CPU or the system unit? So children, it is a system unit or you can say computer case. CPU is a very important component of the computer which resides in the system unit, मतलब जो कि system unit के अंदर present होता है। और लेकिन इस पूरे केस को हम CPU कहते हैं, जो कि इस केस के अंदर होता है। Every computer has a system unit, हर कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट होता है। क्यों चिल्ड्रन? क्योंकि द मेन प्रोसेसिंग या फिर जो काम जिसे हम कहते हैं, जो कंप्यूटर हमारे लिए करता है, दैट इज़ डन बाय द कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शन तो हम देते हैं और फिर वो काम होने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है। तो पूरा जो काम है ये कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट ही करता है। फिर फीचर्स यानी द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम यूनिट इज चिल्ड्रन, वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो पार्ट है कंप्यूटर CPU के, या आप कह सकते हो कि ये जो पूरा कवर है कंप्यूटर केस है। एक तो फ्रंट लुक होता है, व्यू होता है, और एक बैक व्यू होता है। तो फ्रंट व्यू में हमको तीन चीज़ें दिखाई देती हैं। सो चिल्ड्रन, एक्चुअली जो हमारा DVD ड्राइव होता है वो कंप्यूटर ये केस के अंदर होता है, लेकिन जब हम इसकी तरफ देखते हैं तो हमको उसका फ्रंट पोर्शन बस दिखाई देता है। और जब हम बटन प्रेस करते हैं तो इसके लिए एक बटन होता है, व्हेन वी प्रेस दिस बटन विच इज़ फाउंड ऑन द कवर और फ्रंट व्यू ऑफ द CPU। इस सिस्टम यूनिट के फ्रंट यूनिट में वो होता है, फ्रंट व्यू में वो प्रेजेंट होता है। जब हम उसे प्रेस करते हैं तो ये ड्राइव खुलता है, हम उसमें CD या DVD डालते हैं और वो प्ले करता है। तो यहाँ पे CD ड्राइव है, यू कैन सी CD और DVD ड्राइव यहाँ होता है। देन वी हैव चिल्ड्रन बटन होता है विच इज़ यूज टू स्विच ऑन और स्विच ऑफ द CPU। और उसके बाद हमारे पास होता है एक लाइट which indicates that the CPU is on or off. So children, इसको हम एक्टिविटी लाइट कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे प्लग इन पॉइंट्स होते हैं। These plug in points are called ports. तो ये सारे पोर्ट्स होते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज बैक व्यू ऑफ द CPU। आपने कभी अगर CPU के पीछे देखा होगा या उसको आगे घुमा करके देखा होगा तो ये सारी चीज़ें उसके पीछे प्रेजेंट होती हैं। तो वाई वी हैव दीज पोर्ट्स चिल्ड्रन? क्योंकि हम सभी को पता है कि जो पोर्ट्स जो कंप्यूटर होता है, सो चिल्ड्रन वी ऑल नो दैट कि द CPU हैज़ बैक साइड एंड बैक व्यू हैव सम plug-in points which are called ports. So as we know children, the CPU is the central unit of the computer system. ये central unit है। central unit का मतलब क्या होता है children? The unit which controls all other parts of the computer. So computer system के बाकी जितने भी part है, these are controlled by the CPU. So for that children, all the different parts of the CPU has to be attached with the CPU. तो वो सारे CPU से attach होने चाहिए। और how these are attached? These are attached through a wire and these wires are plugged in through the ports. जो ports होते हैं वहीं से ये सारे wires plugged in होते हैं, यानी plug किए होते हैं। So children, and these parts are main part जो हो गया वो तो mouse हो गया, keyboard हो गया, monitor हो गया। Other than these children, other parts are required as per our need. तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से बाकी पार्ट्स को भी हम इसके साथ अटैच करते हैं। सो चिल्ड्रन, दीज पार्ट्स कैन बी प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, आपका स्पीकर हो सकता है, देन इट कैन बी चिल्ड्रन माइक्रोफोन। तो ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। तो माउस तो वायरलेस भी हो सकता है और वायर वाला होगा तो वी कैन ईजिली अटैच। सो चिल्ड्रन, this is back side of the computer and the first picture is of the front view of the computer. Other than these children, what are the components of the computer, so of the system unit?
जो सिस्टम यूनिट, आप थोड़े बड़े हो गए, आपको पता चल गया कि एक्चुअली जिसे हम CPU अभी तक कह रहे थे, इट इज़ नॉट अ CPU, इट इज़ जस्ट अ केस, एक तरह का बॉक्स है जिसके अंदर बाकी के कंपोनेंट्स सच एज CPU, मदरबोर्ड, डिस्क ड्राइव या CD-ROM ड्राइव पाए जाते हैं। तो CD-ROM का मतलब होता है चिल्ड्रन सर्कुलर डिस्क, जिसको हम CD-ROM में लगाते हैं। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन CD-ROM एंड CD-ROM ड्राइव। CD-ROM ड्राइव का मतलब होता है वो प्लेस इन द CPU in the case system unit which runs the which plays the CD-ROM, जो CD-ROM का या DVD-ROM को DVD को चलाता है। तो वो जो प्लेस होता है जहाँ आप CD को रख करके चलाते हैं उसे हम CD ड्राइव कहते हैं। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क है, CPU है और उसके बाद हमारे पास CD-ROM है। तो हार्ड डिस्क के बारे में भी चिल्ड्रन वी हैव स्टडीड, इट इज़ द मेन स्टोरेज यूनिट इनसाइड द CPU। तो जो हमारा मेन स्टोरेज यूनिट होता है जो CPU में प्रेजेंट होता है, इट इज़ हार्ड डिस्क। जो भी चीज़ हम सेव करते हैं कंप्यूटर में, इट गेट्स स्टोर्ड इन दिस पार्ट ऑफ द CPU। अब चिल्ड्रन दीज आर अनदर कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम यूनिट। तो ये सारे जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं जिसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और इनका फिजिकल बॉडी होता है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस होता है जिसकी वजह से हम इसे देख और छू सकते हैं। तो इनको भी हम कंपोनेंट कह सकते हैं या हार्डवेयर कंपोनेंट्स कह सकते हैं। सो मदरबोर्ड चिल्ड्रन यू कैन सी पिक्चर में आप देख सकते हो कि कॉल्ड सिस्टम बोर्ड, इसको हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं या मेन बोर्ड भी कहते हैं, जिसमें ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, जो बिजली का बोर्ड है, जिसमें छोटी छोटी सारी चीज़ों के बारे में तो हम जानते नहीं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और एक तरह से ये बोर्ड है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करता है या CPU को चलाता है, कंप्लीट सिस्टम को मैनेज करता है। तो इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं और मेन बोर्ड भी कहते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास दूसरा है CPU। जैसा कि मैंने बदला कि जो CPU होता है, जिसे हम कंप्लीट सिस्टम यूनिट को अभी तक हम CPU कह रहे थे, वो एक केस है जिसे हम कंप्यूटर केस कहते हैं। उसके अंदर CPU प्रेजेंट होता है, जहां आप यहाँ पे देख सकते हो ये CPU है, ये बॉक्स जो है ये CPU है, जहाँ पे कंप्लीट कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है। उसके अलावा चिल्ड्रन यहाँ पे आप देख सकते हो ये कहाँ, हाँ ये आपका यहाँ पे देखो ये मदरबोर्ड है, दिस वन इज़ मदरबोर्ड। ये पूरा आपके कंप्यूटर केस का या फिर कंप्यूटर सिस्टम जिसको अभी तक आप CPU कह रहे थे उसके अंदर का है, क्योंकि इसके अंदर CPU मेन प्रोसेसिंग यूनिट है, तो कंप्लीट को भी हम CPU ही कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आप देख सकते हो कि ये जो पूरा है ये डिस्क ड्राइव्स है, इसे हम डिस्क ड्राइव कहते हैं। और इस डिस्क ड्राइव में चिल्ड्रन हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव है और CPU ड्राइव है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ड्राइव है, एक तो हार्ड डिस्क ड्राइव है और दूसरा CD-ROM ड्राइव है। CD-ROM ड्राइव का मतलब जहाँ से पे हम इंसर्ट करके CD चला सकते हैं या फिर हम DVD को रीड करा सकते हैं। सो चिल्ड्रन यहाँ पे यू कैन सी टू पिक्चर्स, दिस पिक्चर इज़ ऑफ हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क का पिक्चर है, और ये आप देख सकते हो दिस इज़ एक्सटर्नल व्यू ऑफ द CD-ROM। यहाँ से हम CD को इंसर्ट करते हैं, इसे हम CD-ROM, यहाँ से हम CD-ROM इंसर्ट करते हैं, इसको हम CD ड्राइव कहते हैं या DVD ड्राइव कह सकते हैं। सो ऑल दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर केस। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर केस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम CPU भी कहते हैं। CPU हो जिसको हम प्रोसेसर या फिर माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। वाई इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? Because it performs all the function and it controls all the different parts of the computer system. So with this children we have come to the end of the chapter. Go through the chapter, read all the exercises which all the topics which we have covered today, and children learn all the difficult words as well as the definitions. जैसे कि CPU is sometimes also called processor or microprocessor. Then children motherboard is also called system board or the main board. तो इस तरह के definitions जितने भी हमको यहाँ पे दिए हुए हैं वो सारे आप याद करोगे
or children port, what is port, then what is system unit. So all these things you will learn, and come prepared in our next video so that we can discuss the question answer or the book exercises of this chapter. So with this, children, we have come to the end of this video. Go through the chapter, read self-evaluation and try to judge how much you have understood from the chapter. Learn difficult words, learn definitions, and then we will meet once again in our next video. Till then, thank you.